लॉजिकल इवनिंग एवरीवन। इस विजयदशमी विजय का विजय रथ। So it's a wonderful feeling that we all together are celebrating Dashera in a very, very, very different fashion altogether. And it's always like, the typical Vidhigyans do. Almost every year, we understand what is our priority. So let's begin our victory stride this Dashera. Logical evening, everyone. So I think without investing any further time, straight away going into my section, legal reasoning of Vidhigya Premier League Season 2, Session 1. So let's go ahead and check. I just want to share this with you. The more you sweat in training, the less you bleed in the combat. The days to go are suggestive of the fact that we need to put in a bit more, a bit better, and yes, you're all set to make it large. Again, लॉजिकल इवनिंग एवरीवन। आप सबके नाम लेके आपको याद करने में बहुत समय लग जाएगा ना, सो योर लेसर टाइम, लेट्स हिट द बुल्स आई। टॉकिंग अबाउट टुडेज VPL legal reasoning section, you've taken it at slot number 3, and taking it at slot number 3, I would have reservation to call it somewhere between easy to moderate के बीच में, or since I have had the luxury of understanding what kind of patterns the score could have been, this is my personal understanding. I believe, I've always been believing that number of good number of attempts, agar hum bole, so it's going to be nothing less than 4-0. This is a magical number. That would have been a good attempt. I know, understanding the slot, the difficulty level, and then 5 sessions together. Still, I'm of the opinion that this would have been, I'm talking about top 5 NLUs. If you're thinking for top 5 NLUs, I think you should have had 30-32 corrects. I repeat, 30-32 correct with the liberty of missing out on 10 or 8. All right? Interesting है ना? Discussion से पहले थोड़ा सा स्कोर की कहानी। 40 में 40 attempts, 40 मिनट में। This is how, the toppers ought to be trained. Then 30-32 सही हो जाते, 10 या 8 गलत हो जाते, a score ranging between this I would have been okay with. 30 to 27.5 is a decent total. Decent total on board to defend. कैसा लगता है? Seems good? Let's check it out then. Going ahead, let's see the passage number 1. Logical evening, everybody. Let's get on to the passage 1. See, I know by now you've already gone through the passages, so I'll not be wasting a lot of your time, and I would want to keep this analysis shorter today because we have a session lined up by Sameep sir, which is very important. They are like MITs for 2023, a very well-researched session. So when I talk about this passage number 1, it is about a passage where the government of India is requiring these social media intermediaries to comply with the norms. Important बात क्या है? इन्होंने बोला कि 3 महीने की डेडलाइन खत्म हो रही थी, मई 2021 में डेडलाइन आई थी। Then Google के spokesperson का कहना है we had a long history of abiding by what the government of India says. हम government of India की सारी बात मान लेते हैं, जो बोलते हैं उन्हें समझ लेते हैं। एंड देन यहाँ पे उन्होंने बोली कि हम लोग ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3 महीने की डेडलाइन में ये लोग उन पॉलिसीज को कंप्लाई नहीं कर पाए। गोइंग अहेड, ये रूल्स जो 25 फरवरी को आए थे, उसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ये जितनी भी इंटरमीडियरीज हैं, दे आर बीइंग ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। ये वाला जो पैसेज था ना, बेसिकली इट वाज काइंड ऑफ अ कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट। If it is more on contract or criminal law, constitution, you do good. So sometimes offbeat topics, we had such topics in CLAT 2020. We had them in 2021 as well, and 2 of them in 2023 together. So we had it in almost all the CLAT exams. So preparation तो होनी चाहिए। फिर ये guidelines for intermediaries and digital media ethics rules of 2021. And most important thing here was कि इन रूल्स में मैंडेट क्या किया ना। हियर जब भी हम ऑफसेट का रूल लगाए तो ये समझ में आता है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, मैंडेटेड। मार्क करते जाइएगा मेरे साथ पेपर में, मैंडेटेड दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह वगैरह to tell about the origin of tweets, etc. The regulation requires to have a 3-trial grievance redressal mechanism.
ट्विटर इज येट टू कमेंट, फेसबुक और गूगल ने अपने अपने कमेंट्स कर दिए. These are the passages, which are kind of brain churning at times. The government is likely to seek reports from the companies to check as if they have complied with the rules. और यहाँ पे ये एक और principle of law कि they have an immunity from prosecution for the content posted on platforms. आशी गुप्ता बोल रही है रूल्स फेब में आया मैं. बेटा पैसेज ढंग से नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा. ये देखो, ये लिखा है फेब. फैब के बाद 3 महीने के अंदर उन्हें कंप्लाई करना था, तो लास्ट डेट ऑफ कंप्लाइंस क्या हो जाएगी ये समझ लो. मई 2021 को क्या बोल रहे हैं वो लोग वो भी समझ लो. ठीक है. आई होप आशी गुप्ता हैव एक्सप्लेन्ड. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग टाइम. इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द डेथ ऑफ अ गर्ल, इस क्वेश्चन का कैच सीधे दिस टाइम हिटिंग द बुल्स आई, बिकॉज आई नो यू आर लॉट ऑफ सेशंस टुडे. समय बचाएंगे. काम की बात ये थी कि इन दिस केस देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन डन, पर ये कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं कर रही है, फ्रेंड ऑफ दैट गर्ल. तो जब गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी डेटा नहीं मांग रही है तो क्वेश्चन है इज ट्विटर लायबल टू गिव डेटा. आंसर मेरे मन में है क्लियर नो, और नो के साथ सही रीजनिंग इज बी. तो 66 दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द मॉक that we had today is B, Bombay. Without wasting any further time, let's go to next question. In your book, it would be 67, and I call it number 2. The second question is, in January 2021, in order to investigate the financial fraud, Facebook and Twitter as medium, the commissioner of CBI requested the origin of 1,000 tweets and messages being sent on Facebook and Twitter citing the privacy of users, वगैरह वगैरह. And question number 2, are these platforms liable? नहीं, no. Question number 27 is no, because जनवरी में तो गाइडलाइंस आई थी, उनको कंप्लाई करने का टाइम वाज लाइक फरवरी से 3 months, so it was till May, फरवरी से, so it's not happening. 67 is B, Bombay. It's not D. Social media rules were not applicable on this date. January 2021 को applicable नहीं थे. People writing D are absolutely wrong. Going to question number 3. I hope कि आज थोड़ी सी गति ज्यादा है मेरी, पर वो ज्यादा गति जरूरी है. आज आपके आगे भी सेशंस हैं, है ना. डेट का धोखा, हाँ बेटा हो गया ऐसा. तो क्वेश्चन के इन्हें फ्लिपर्स बोलते हैं, इन्हें ट्विस्टर्स बोलते हैं, तो ऐसे होने चाहिए क्वेश्चंस. Let's get on to question number 3. When I talk about question number 3, that is 68 and with you. Vidhan is a social miscreant. Incite violence. He posted violent content वगैरह वगैरह. The local police filed an FIR CEO against CEO. वो लास्ट में दिया हुआ था ना. If you see the last paragraph, वहां पे immunity की बात दी हुई है ना. So people saying B, people saying D, just understand how can this be the answer. When we see the third question, yes, because he's providing no intermediaries को protection है. Last paragraph में लिखा है, आप पढ़िएगा. No, because CEO of Facebook India is not responsible for taking any action. No is ये दिया हुआ है. This protection answer is C, Calcutta. So Priyanshi, Astha, Kritika, Yuvraj is wrong, blatantly incorrect. Atarf, Mudit, Mahima सही है. चलो, आप लोग नंबर 3 नंबर 4 करते बोलते जाएंगे ना, तो आई थिंक दैट वुड बी इजी. द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज 69. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. इसमें से क्या पैसेज से इन्फर नहीं कर सकते. पहली चीज, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आर इंटरमीडियरीज. ये इन्फरेंस ड्रॉ किया जा सकता है, तो इट्स नॉट आवर आंसर, नहीं हो सकता. ट्विटर हैज इंफॉर्मेशन ओरिजिन ऑफ अ ट्वीट. हाँ, वो अज्यूम किया जा सकता है, देयरफॉर दे कैन बी आस्क्ड टू डिस्क्लोज, नहीं हो सकता. देन social media companies are encouraging, this cannot be. C is the answer. So question number 4 is C. Charvi, Kratika, Priyansh, Aviral, Anaya, Ashi, Aviraj, Vedika, Priyansh, Rakshita. सही है, good. चलते हैं आगे. Question number 5. Which of the following statement is incorrect? Now talking about the statement incorrect, that's 70. Question number 70. Let's see. The new rules were introduced
in February 2021, ipso facto facto में दिया हुआ है. The prescribed deadline is to comply in July. No, in May. The regulation also requires company to set up. Is correct. ये भी correct है. Google has a history of adherence. ये भी correct है. Answer is C, Calcutta. Fifth का answer is C. People marking B. No. ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही. आंसर वुड बी बी बॉम्बे. सॉरी, बी बॉम्बे. हमारा ए, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. इसमें ओनली बी इज इनकरेक्ट. आई स्टैंड करेक्टेड. बी बॉम्बे इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 70. I'll go with 1, 2, 3 numbering. I hope you don't mind that. Now coming to passage 2. The passage 2 is about the doctrine of separation of power. Doctrine of separation of power के साथ सबसे important बात है, this is about constitution office of profit. Office of profit बोले तो a person who is already holding an office of profit cannot be the member of parliament. Now, it is a ground for disqualification in the constitution being a legislator. Article 124 है, ये वाला जो part है 102 वाला, Article 102, this is the principle of law. If he holds profit or other state, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला फर्स्ट, सेकेंड, ऑफसेट हमेशा याद रखना. प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बाद व्हाट आर दे आर दी क्राइटेरियाज. थर्ड कहां गया? ये रहा थर्ड. सो दिस वाज फिर अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट. ये भी प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये भी प्रिंसिपल ऑफ लॉ. दिस वाज द एरिया जो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए था. ठीक है. नाउ मच नीडेड ट्रांसपेरेंसी वगैरह वगैरह, ये है रैशनल कि हमें क्यों चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. टू एवरीबडी, आई नो आई एम गोइंग अ बिट फास्टर टुडे. अंडरस्टैंड दैट वी हैव मोर सेशंस लाइंड अप. मुझे लगता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अपने आप में एक टॉपिक है, अच्छे समझ में आ जाना चाहिए. उसके में अभी आई एम टॉकिंग ओनली द लाइट ऑफ द पैसेज. पैसेज में जो काम की चीज है आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू. आई थिंक वो समझ में आया तो यू आर गुड टू गो अहेड. Let's come to question number 6. Vidhan is a government official working under Vidhigya Limited for past 25 years. यहाँ पे सारी वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की इंटरप्रिटेशन है. इट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इंटरप्रिटेशन. अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जो इंटरप्रिटेशन है उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है so Vishnu Priya, Aviral, Khushi, Anaya, Athar, these all people, right? I hope you are with me if I'm even at a pace today. Usually I go slow, but आज थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं. As Vidhan had a clean track record, ये देखो इसमें ये काम की बात थी. It has an exclusive authority to give licenses और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा था. यहीं से हमारा आंसर आ गया. कितना सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा it will succeed because Vidhigyan is involved in business which constitute office of profit as per the Supreme Court judgment. आंसर हो गया C, Calcutta. Anybody having any doubt? My good God, everybody getting this question right? फिर भी देखो ओवरऑल मार्क्स नहीं आए. 40 मिनट में करना was the art. Great going. Let's go ahead. You ought to understand that you're doing legal reasoning is good, but do it in the time which is required. If you exceed that time, you're not doing justice with your preparations any which ways. Coming back, let's get on to question number 7 now. That is your question number 72. All right. Vidhi was an actress. She was honorary to some board, NFCB, वगैरह वगैरह. And now she wants to contest Lok Sabha election. Question है क्या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा? आंसर है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के हिसाब से और जो क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब तो उसके हिसाब से ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है. सो ऑल द किड्स मार्किंग ए आगरा आर राइट. शुभी अग्रवाल इज रॉन्ग. विष्णु प्रिया तिवारी इज रॉन्ग. मुदित दुबे इज रॉन्ग. She will not, it's not an office of profit. All right.
क्वेश्चन नंबर 7 यहां दिया हुआ है ना, एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए था वगैरह वगैरह। क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं दो, उसको पढ़ लीजिएगा, यू विल गेट टू नो। लेट्स गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी सिंपल, इज अ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो सैलरी और वो सारी बात आ गई ना, गवर्नमेंट से ड्रॉ करते हैं। यहीं पे क्वेश्चन बहुत खत्म था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द आंसर इज ए, लाभांशी, पवन, वेदांत। यस अथर्व, इट्स रिटन, यू रीड वेल द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एज वेल, समझ में आ जाएगा इसका आंसर। टू एवरीवन सेइंग क्वेश्चन नंबर 8 आंसर ए इज करेक्ट। जहां आप सबके आंसर सही हो रहे हैं वहां मैं बहुत रीजनिंग में एक्सप्लेनेशन की बात ही रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, सो ही इज अगेन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आई हैव बीन टोल्ड दैट यू हैड अ हेक्टिक डे, आज आप सुबह हमारे साथ बहुत लंबे दौरान से हैं, 9 बजे से है, सिंस 9 to 6। कूडोज टू यू, दिस हार्ड वर्क विल पे ऑफ, करते रहिए मेहनत। अब आ गया असर्शन रीजन क्वेश्चन। चूज द अप्रोप्रिएट रीजन, एनी पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज बार्ड फ्रॉम बिकमिंग अ लेजिस्लेटर। असर्शन रीजन क्या है, रीजन क्लियर दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात थी, सी के अलावा कुछ हो नहीं सकता। 9th इज सी, टू मी अनाया मुछाल, खुशी अग्रवाल, पवन कोठारी, प्रशंसा पांडे, युवराज निगम, आस्था करोदी आर राइट एंड अविरल इज रॉन्ग। चारवी विल डू इट, वरी लेस, लेट्स डू इट। चलो, I think 9th is C, which is quite evident, need less to worry. Let's go on to question 10th. Choose the most appropriate inference from the passage. Most appropriate inference, question number 10. Now, when coming to question number 10, Government of India has given satisfactory for not precisely defining. Government has given satisfactory explanation नहीं, वो author बोलता है satisfactory नहीं थे, explanation तो दिए हैं पर satisfactory नहीं है। सुप्रीम कोर्ट has failed to precisely define the office of profit, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट में किया है। The government has failed to precisely define the office of the term, yes. The Supreme Court has given a precise interpretation, yes. Supreme Court has failed, nahi. Answer C, Calcutta. To question number 10, answer is C, Yuvraj makes sense, Devank Goyal makes sense, Labhanshi makes sense, Utkarsh, Rakshit, Vibhuti, Dhwanit, they are right. Khushi Agrawal, if you can't be in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, I think I'll not be able to catch up with you. 75 A करके तो नहीं समझ में आया, और अगर 75th है तो बेसिकली 10th क्वेश्चन है, तो A is not the answer, it's C. Government has not given, अगर satisfactory होता then it would have been correct, A. I hope we understand the reason. Good going Asad, बढ़िया बढ़िया ध्वनित। सृष्टि चिंता ना करो, आखिरी में पूछूंगा मैं सारे स्कोर्स, बार बार पूछूंगा तो टाइम कम है ना। और युवराज इज सुपर हैप्पी, वर्ष 5 में 5 है, रुक जा लास्ट में बताना हाउ मच डिड यू गेट। लेट्स कम टू द पैसेज नंबर 3। ये पैसेज नंबर 3 इज अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन। When we talk about reorganization, there is a power under Article 3 of the Constitution. जब reorganization की बात करते हैं तो Article 1, Article 2, Article 3 उसमें दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है, जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन का इशू हो तो उस स्टेट से एक लेट्स सी द प्रोसीजर दिया हुआ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी। प्रेसिडेंट का जो रेफरेंस है, जब भी कभी किसी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की बात आएगी तो प्रेसिडेंट रेफर कर सकते हैं सच लेजिस्लेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, और वहां का अगर स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो चुका है तो वो पावर किसके पास आती है, पार्लियामेंट के पास। जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ कि जब स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व है तो पावर इज विद द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये पावर इज विद पार्लियामेंट। 3 ऑप्शन है, या तो स्टेट लेजिस्लेचर अगर अपनी एडवाइस दे भी दे तो भी वो कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं है, अगर चाहे प्रेसिडेंट साहब तो पार्लियामेंट को उसे भेज सकते हैं या टाइम एक्सीड कर सकते हैं।
These are the three things. Many of the students have already gone with question number 11. So I think everyone is keen on question 11. The incumbent to the government, है ना, is run by so and so party. इनकी यहाँ सरकार है. They passes bill to alter this place. The bill was moved in Lok Sabha for satisfying. The bill was sent to president. The president sent to the bill to Kunka. Strong reservation were made against bill. Decide the outcome. स्टेट गवर्नमेंट के ऑपोजिशन से क्या बिल लैप्स हो सकता है? आंसर इज नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो व्यू पॉइंट है वो परसुएसिव है. वो व्यू पॉइंट मे नॉट बी कंसिडर्ड. इट इज जस्ट एडवाइजरी विच हैज नो बाइंडिंग वैल्यू व्हाटसोएवर. द बिल वाज लैप्स. द बिल विल नॉट लैप्स एज अ डिसीजन वेस्ट इन मेजॉरिटी स्टेट्स. नहीं, द डिसीजन वेस्ट इन द पार्लियामेंट. आंसर इज सी, कैलकाटा. सभी का सी था, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस. एवरीवन इज राइट, करेक्ट, तो व्हाई टू एक्सप्लेन. जनता नेशनल पार्टी इज अ रूलिंग पार्टी. इट हैज वर्क ट्रेमेंडसली इन डेवलपिंग वगैरह वगैरह. अब यहाँ पे एक और स्टेट है, स्टेट ऑफ महानता. स्टेट ऑफ महानता में प्रेसिडेंट रूल हो चुका है. द बिल वाज सेंट टू प्रेसिडेंट. नाउ प्रेसिडेंट इज इन डिलीवर टू हुज व्यूज शुड बी ऑब्टेन्ड. स्टेट इज नॉट इन फोर्स. जब स्टेट गवर्नमेंट फोर्स में नहीं होगा तो किसके व्यूज लेना है? क्वेश्चन नंबर 12. चारवी बोलती हैं ए, शुभी बोलती है सी, सुपल बोलते हैं बी, पवन बी, या ए बी सी डी तीनों हो गया इसमें. सो लेट मी सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट रूल हो गया है, जैसा कि हमारा एग्जैक्टली हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में. और मैंने अभी आपको पढ़ते टाइम भी बताया, जब प्रेसिडेंट रूल होगा तो द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो पावर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. सो दैट वे इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 12, the only possible answer, the president has complete authority, never. The parliament has all power of state government, making sense. The parliament, president shall wait for statement to come in force, absurd. It's absurd. Extraneous, नहीं हो सकता. President has discretion to choose any of the above, not at all. It's B, Bombay, without an iota of doubt. मैंने B बोला है सर. अच्छा शुभी अग्रवाल, आपने बी बोला है, उसके ऊपर वाला सी आपका अभी आया होगा. योगेंद्र कौरव ने आंसर ही डिलीट कर दिया. वेरी गुड. चलो ठीक है बेटा, आपने बी ही बोला है पक्का. नेक्स्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट इन फोर्स in India is run by Janata Kalyan Party. The same party is ruling in so and so state. The central government passes a bill to alter the land of area of Ayodhya by adding some land to the state. The bill was moved to Lok Sabha for satisfying the procedural requirement was sent to the president. The president sent the bill to Ayodhya government for the views in 14 days. और 14 days तक रिप्लाई नहीं आया. अगर 14 days तक रिप्लाई नहीं आया तो क्या कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब? इतना सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. हातिफ, विष्णुप्रिया, अविरल, असद, कुणाल, उत्कर्ष, आयुषी, गौरी. गौरी क्वेश्चन नंबर 13 में गलत लग रहा है आपका व्यू. रूबी जैन सही है. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. द राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू गिव इट्स व्यू में भी वेव. सीधी बात है, आपको 14 डेज का टाइम दिया था, खत्म हो गया, प्रेसिडेंट उसको वेव कर सकते हैं. द बिल में भी नाउ मूव टू ईदर हाउस विदाउट हैविंग व्यूज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो भी कर सकते हैं. द प्रेसिडेंट में एक्सटेंड द टाइम, वो भी कर सकते हैं. हमारा आंसर हो गया डी, दिल्ली. प्रियांशु मालवीय, सो मेनी डीज, ग्रेट. द डी. फिर से इस तरह का क्वेश्चन, एक असर्शन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि रीजन क्या होगा. पार्लियामेंट cannot on its own pass any bill concerning the territories of any state. Question number 14. 14 is interesting. Shubhi Agrawal don't write questions, so I don't know what is she saying, which question answer. Same as Rehan. Answer question number नहीं लिखोगे पता कैसे. Supal says 14 का D, Simi Parihar says B, Mayank says D. D and C is in the race, and C has the numbers. Most of the students saying it's C. So question number 14, the parliament cannot on its own pass any bill concerning the territories of any state.
ये नहीं, ये गलत बात है, सी नहीं हो सकता। पार्लियामेंट को लेना पड़ता है ना, प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट और स्टेट के पास भेजता है, एक बार उनसे पूछते हैं उनका व्यू, वो बाइंडिंग हो ना हो, बट दैट इज टू बी सेंट, भेजना जरूरी है, ऐसा लिखा है, भेजना मैंडेटरी है, वो जो व्यूज आए उनको मानना जरूरी नहीं है। तो ये जो सी लिख रहे हैं दे आर रॉन्ग। द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज लिमिटेड टू रिमूव आर्बिट्ररीनेस, नहीं। द मोस्ट अफेक्टेड एंटिटी इज द कंसर्न इज व्यूज मस्ट बी टेकन, ए। 14 is A. Anybody having a doubt can ask। कई लोग D मार्क कर रहे हैं। पार्लियामेंट, द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज लिमिटेड, ये बी तो हो ही नहीं सकता बेटा, इसे ढंग से पढ़ो, इसकी फ्रेज को ढंग से पढ़ो। So question number 14, the answer, the most appropriate answer seems Agra। Let's come to question number 15। Correct option क्या होगा इसमें? During president rule, any bill altering the territories of any state cannot be passed। ऐसा तो नहीं है, गलत हो गया। During president rule, the views of state government can be substituted by the views of past president। ये भी गलत हो गया। Divyan Sharma, the views must be taken binding। No, the views have to be taken mandatorily। और अगर वहां state government नहीं हो तो parliament से लें, but those views are not binding। That's how it is। Question number 15, people are racing to answer me। Ah, it's correct। During president rule, the views of state government, मुझे भी आप lopsided कर दो, and everyone is having the same answer, तो वही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। The president rule, the views of state government can be substituted by the views of governor of state। नहीं, parliament। D Delhi is the answer। Great going everybody। दिव्यांश शर्मा समझ में आ गया, गुड। Question number 16, which of the following statement can be most likely inferred from the views expressed by the author? इसमें से क्या इन्फर किया जा सकता है? During president rule, the views of state government can be substituted by the views of president। नहीं, by the views of parliament। The views of state government are just persuasive and final authority rests with the parliament। Absolutely right। The state government exercises plenary power। No, no plenary power, limited power। Article 3 is contrary, not at all, extraneous। 16 का आंसर is B। गौरी, खुशी, अनाया, प्रियांशी, रूबी, आयुषी, शुभी, गरिमा, सुहानी, मयंक, कनक, पारुल, everybody is B। My God, इतने सारे नाम, शिमिसा, सिमीशा, देन दिया, देन सृष्टि, everybody there। अभिनव जगताप, गलत जवाब। अधिराज सिंह तोमर, भयंकर गलत जवाब। ये तो एक्सट्रीनियस है यार। Let's get on to passage number 4। Passage number 4 was about section 34 of IPC। section 34 of IPC मैंने कई बार बताया है कि अगर एक पर्सन एक ऑफेंस कर रहा है, कनक श्रीवास्तव, आई थिंक इट इज इररिलेवेंट यार, यहां पढ़ाई करो ना ध्यान से। Passage number 4 is about section 34, that act done by several person in furtherance of common intention। आप 5 दोस्तों ने मिलके एक पर्सन के मर्डर का प्लान बनाया। पांचों के रोल कितने छोटे छोटे क्यों ना हो, पांचों के रोल कितने छोटे छोटे क्यों, एक ने सिर्फ गाड़ी अरेंज की, वो नीचे वेट कर रहा है कि इनको लेके जाएगा, एक ने वेपन अरेंज करा, एक ने वेपन स्टैब किया। When they're acting together, and the most important word to solve this passage, I've time and again told in the class, is with a premeditated mind। बेटा अगर premeditated mind के साथ people are acting in consortium and they go on committing an offense, in that particular case we say that under Indian Penal Code, I repeat, under Indian Penal Code, they all are guilty for the acts done in furtherance of common intention। ये इस पैसेज का क्रक्स है। प्रीमेडिटेटेड माइंडसेट से, प्री अरेंज्ड प्लान से कोई ऑफेंस आप करके आते हैं तो आप सब गिल्टी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। इसमें एक केस था एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज रिपोर्ट, उसमें से लिया हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 17 बी इज एंड महावीर से सी।
है ना, बी और सी आंसर्स आ रहे हैं, इसे देख लेते हैं। सुरेश इज मैरिड टू विधि, हैविंग अफेयर विद Abhishek. In fit of rage, Abhishek, he goes to Abhishek's house and beat him up. Suresh called his brother Vidhan and told him that they are going to beat him up. Vidhan rushed to Abhishek's house and told him to calm down. अब calm down बोल रहा है मतलब premeditated mind नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 में premeditated mind था ही नहीं। एंड सॉल्व इट बाय कॉलिंग पुलिस, तो मतलब ये तो कभी लड़ाई झगड़े के मूड में था ही नहीं। ड्यू टू हैवी ब्लोज ऑन हिज हेड मिस्टर अभिषेक डाइड, मिस्टर विधान वाज चार्ज अंडर सेक्शन 34। इज विधान लाइबल? क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखिए। सुरेश की लड़ाई है अभिषेक से, ये इसके लिए गिल्टी होगा। अब क्वेश्चन ये था कॉमन इंटेंशन के साथ किया हुआ एक्ट के लिए विधान भी लायबल होता। विधान एक प्री मेडिटेटेड माइंड के साथ कोई एक्ट करने आया ही नहीं था। ये जो चीज लिखी है ना, टोल्ड हिम टू काम डाउन, टोल्ड हिम टू सॉल्व बाय कॉलिंग पुलिस, ये दिखाता है दैट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। वो इंटरेस्टेड था ही नहीं, समझ रहे हैं? एंड दिस इज व्हाई वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17, द आंसर इज विधान इज नॉट लायबल। बी सी डी में से सी इज द बेस्ट रीजनिंग। कहानी खत्म, ऑफेंस, कहानी खत्म। यहां पे लिख रहा है he called him to do so, बोला ना, या प्री मेडिटेटेड माइंडसेट के साथ आ जाओ, तो उसने बोला तो, लेकिन प्री मेडिटेटेड माइंडसेट के बाद कोई ऑफेंस नहीं हुआ। लुक एट दिस क्वेश्चन, यू विल गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। विधान टोल्ड हिम, विधान ने बता के बोला कि उसको मारने जा रहा हूं। विधान को बोला इसने, सुरेश ने, बीट अप अभिषेक। But Vidhan comes and say that let's calm down, let's solve it by calling police. So therefore, question number 17, that there's no offense done, and how this person can be liable. नहीं देवेश, not be, because यहां पे जब विधान told that he is going that to Mr. Abhishek's house to beat him up, तो उसने बताया था कि वो करने तो वही एक्ट जा रहा है, पर देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड, प्री अरेंज। उसने पहले से बताया था कि मैं उसको मारने जा रहा हूं, एक प्लान था, पर उस फर्दरेंस, एक्ट डन इन फर्दरेंस, उस प्लान के फर्दरेंस में कुछ हुआ नहीं। यहां पे कि एक प्री अरेंज प्लान नहीं था, उसने प्री अरेंज प्लान तो बताया था ना इसे, बट दैट डिड नॉट हैपन, which is most appropriate with the given logic. Pre-arranged plan was there, ये लिखा है, but no act was done in accordance with that. ठीक है, understood? चलो, question 18, in above question, would it be relevant that with respect to charge under 34, if Vidhan had gone to Abhishek, मतलब सुरेश का ब्रदर विधान और सुरेश की लड़ाई है अभिषेक से, if Vidhan had gone to Abhishek's house and had in the heat of moment started beating up, question number 18 is good. यहां पे दिख रहा है कि हीट ऑफ मोमेंट में किया है, वहां पे क्या था, इन फर्दरेंस विथ कॉमन इंटेंशन कॉमन प्लान, सोच के नहीं आया था वो घर से, यहां आया तो हीट ऑफ मोमेंट में कर दिया। ही माइट बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, पर क्वेश्चन है क्या सेक्शन 34 में जहां वो लिखा है ना प्री अरेंज प्लान, therefore to question number 18 the answer is going to be A, Agra. You all are right.
Okay. Next, Vidhi, who found out that her husband is cheating with some, called her friend. They had a conspiracy. Meera came out to visit Vidhi at her house. Her husband was not there, hid behind the curtain with a .9 mm pistol. When her husband came home, she pointed pistol at him, but the husband, who was extremely good reflexes, got the gun out of her hand, then approached the police, both Meera and Vidhi, for attempt to murder. Question number 19 simple है. Premeditated, pre-arranged plan है. Question number 19 में without any doubt C. मुशय्यन, बेटा बी कैसे? नहीं होगा. बात इंजुरी की है ही नहीं ना, वो तो बोला अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो ना बोला मर्डर, बोला अटेम्प्ट टू मर्डर तो ऑफेंस किया ना, उसकी बात चल रही है. चलो. Which of the following cannot be assumed from the above mentioned passage? Question number 20. Examination of witness is duty of prosecution, उसमें लिखा हुआ है, assume कर सकते हैं. A prior pre-arranged plan is necessary to attract 34. The death of a person is necessary. My God, question number 20. A prior pre-arranged plan, ये भी होगा. Death of a person, death की तो बात ही नहीं किसी भी ऑफेंस में होगा. This is wrong. 20. Man, Priyansh, Parul, Mitali, Siddhant, Garima Gupta, making sense. Wonderful. Chalo. We're done with half of the paper. 20 questions में से anybody scoring perfect 20? जल्दी बताओ. Everybody out there, your score. Anybody scoring 20 on 20? Perfect 20 कितनी का score है क्या? My God, आयुष जैन A and B, मतलब कौन से उसमें हो? मैं 21 पे गया नहीं ना. We're done with halfway through. Anybody scoring 20 on 20? Khush Baldwa is replying 21 with Pawan Kothari and with Tanishka Agrawal, with Kartavya Nayak, Prashansa and everybody. And I'm asking, Kratika Jaiswal says 17 on 20. Decent beta, बढ़िया. ये वाला lag was comparatively easy on scoring. आगे चलते हैं. Let's get on to question number 21. Which of the following cannot be inferred from the paragraph? Supreme Court is apex court. A man can never be considered extraneous. ये नहीं कर सकते. B. Bombay cannot be inferred. I think 21 was a cakewalk. With this ID, Pawan Kothari, are you Mridul that side? नाम सही करो ना बेटा. कहाँ से नाम लिया है? अपनी आईडी से आया करो. Wonderful. चलिए. Now, coming to passage number 5th of the day, it is about secularism. और secularism की बात करें तो इसमें दो तीन judgments की बात दी हुई है. उसमें बोला गया है absence of religion is not what state would mean. The meaning of term secularism in a state is that it has to have a state of neutrality towards religion. Every religion. पापा की आईडी है. Okay. Due to lack of time. ये lack of time को तो ठीक करना है हमको. रूबी जैन. ठीक है. चलो. शुभी अग्रवाल is like कि सर आप तो क्वेश्चन के आंसर्स बताइए, आगे चलते हैं. Wonderful. क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं. साकेत नगर इज अ पॉश कॉलोनी इन इंदौर. एवरी ईयर दिस नवरात्रि फॉर 9 days. अभी भी खत्म हुआ. एंड 2 AM. Now this is too much. The residents of Saket were disturbed by loud music and they filed a petition to stop such events. The association pleaded that they have a fundamental right to freedom of religion. अब freedom of religion is subject to reasonable restrictions. ये पैसेज में दिया हुआ है. So बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें ना, तो हमेशा याद रखना फ्रीडम्स, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 to 28 एब्सोल्यूट नहीं है.
आर्टिकल 19 की फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, वो पता होना चाहिए, पैसेज में दिए हुए थे। अब सीधी सी बात है, व्हेन वी सी क्वेश्चन नंबर 22, द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज वायलेटेड एज दे आर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, नहीं। द फंडामेंटल राइट इज नॉट वायलेटेड, हाँ। इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, बिल्कुल सही, 2 एंड सही, 1 आंसर इज डी, पीपल मार्किंग डी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आशी गुप्ता कंप्लीटली इज मेकिंग सेंस। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की उनने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताई है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। दीज आर थ्री ग्राउंड्स ऑन विच योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी curtailed। चलो, क्वेश्चन नंबर 23। एक शिव टेम्पल है केरला में, उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक पंडित चाहिए। बोर्ड ने एक नॉन नंबूदरी ब्राह्मण को पुजारी अपॉइंट कर लिया, बिकॉज, और यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट, हु हैज अ डिसेंट नॉलेज ऑफ शास्त्रास, इसे शास्त्र पता थे। आज जो ये विजयदशमी का दिन है ना, यहाँ पे दो चीजों की पूजा होती है। एक शस्त्रों की, तो जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या जिनके घर पे आर्म्स हैं, वो आज उसकी पूजा कर रहे होंगे। और आज दूसरी पूजा होती है शास्त्रों की, पढ़ाने की, विद्या की, तो उसकी पूजा हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग भी तो दशहरा ही मना रहे हैं, और इस दशहरा जो मेहनत करेगा वही तो जीतेगा। विजय दशमी, हाँ, रिमेंबर इट। चलो, क्वेश्चन नंबर 23। अपॉइंटमेंट इज वायलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आंसर इज नो। ऐसा अपॉइंटमेंट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के वायलेटिव नहीं है, बिकॉज एक पर्सन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात ये हो रही थी कि रिलीजियस अफेयर्स में दे कैन नॉट बी डन दिस। यहाँ पे वो पर्सन क्वालिफाइड है, डी इज अ बेटर लॉजिक, क्वेश्चन नंबर डी। वो कहते हैं ना, टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस, यही तो है फंडामेंटल राइट। पर यहाँ पे बोल रहे हैं कोई वायलेशन नहीं हुआ, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट तो है, पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ। पुजारी का अपॉइंटमेंट इज फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड रिलीजन, जैसा करना चाहे वैसे करे। तो देयर इज नो वायलेशन एज सच। द आंसर इज 23 का डी, दिल्ली। डी बिकॉज ए और सी तो यस है, वो आपने देख ही लिया है। नॉट वायलेटिव एज देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू अपॉइंट प्रीस्ट अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन। बात ये है, प्रैक्टिसिंग रिलीजन ऑफ चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट। डी इसलिए क्योंकि कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ, एक एक क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है, एंड दैट कैन बी डन, सिंपल एज दैट। विधि समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी है, देवेश निगम। हाँ, बता दिया। एवरीवन आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, आई आंसर्ड दैट, 23 भी। चलो, 24th, सेक्युलरिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स, नो ऑफिशियल रिलीजन, यस। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, नहीं। सोशल डाइवर्सिटी, नहीं। इवन व्हेन यू टॉक अबाउट रिलीजियस डाइवर्सिटी, नहीं। आंसर इज ए, 24 का आंसर इज ए। ये कहां लिखा था? हाउ डू यू इन्फर डी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इतनी सारी डेफिनेशन दी हुई हैं। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नाउ पूछा उसने अकॉर्डिंग टू इंडियन, दो लोगों की सेक्युलरिज्म की और डेफिनेशन दी थी।
समथिंग वाज गिवन रिलेटेड टू इकोनॉमिक, नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म का जो मीनिंग वहां एक्सप्लेन था, उसका ये कहना था स्टेट शुड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रिलीजन, स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। बट देन उन्होंने बताया कि इंडिया में डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ रिलीजन। गुड। क्वेश्चन नंबर 25। 25, द रिलीजन इज द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल ड्यूटीज एंड डिवाइन कमांड्स, नहीं, इट इज सिंपली 25 is C. No brainer. हाँ आशी गुप्ता, no brainer. Will not invest much time there. We'll go ahead. All right. Passage number 6. Passage number 6 is about rule of law. और rule of law के तीन tenets: supremacy of law, equality before law, predominance of legal spirit. ये तीन चीजें दी हुई हैं। सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 26। So Hani Gupta sir, can you explain the third point given? Beta, third point is about judicial precedents. In a quick go, I've explained 26th Shubhi, Man, Abhinav, Ruby, Anaya, Vidhi, Diksha saying D, Deepti Khandelwal saying A. Not the meaning of 26 में. None is above the law है, equality before law है, predominance of legal spirit है, supremacy of plenary, plenary मतलब नहीं नहीं नहीं, ये discretionary नहीं. D, correct. 26 is D, which is not the meaning. None is above the law. How can you say Labhanshi? Not the meaning में कैसे आ जाएगा ये? Supal, absolutely wrong. Rule of law can be most suitably attributed to. Plenary means unrestricted, vast, wide. और plenary का मतलब खुद पढ़ना चाहिए ना? Asking me, very bad, Ashi. Plenary discretion. Plethora, plenary. Question number 27. 27 is simple. ये वाला passage was the simplest of all. 27 is Man saying C, Shubhi saying D. 27 में रूल ऑफ लॉ कैन बी मोस्ट सुटेबली एट्रीब्यूटेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हाँ ठीक है. नेसेसरी एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन रूल्स, नहीं, ये जरूरी नहीं है. द पावर टू मेक लॉज रेस्ट इन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इलेक्टेड पीपल, ये भी जरूरी नहीं है. नो पर्सन शैल बी पनिश अंटिल हिज गर्ल, ये अजम्पशन है क्या? कहां से आ गया ये? यो गई मन की बात, हाँ, विच इज नॉट ऑलवेज राइट. The concept of rule of law as discussed by Aristotle is not based on which of the following ideas? Question number 28. It is based on justice, this and this. Good conscience नहीं था. D. चारवी प्रशंसा. Question number 28. विधि महावीर, निपुण Shubhi, Astha, Mehak, and Priyansh Aviral. Everyone is right on this question. A simple cakewalk. Let's go to question number 29. Benefit of rule of law. Rule of law से फायदा क्या हो जाएगा ये पूछा. Question number 29. ये cannot be assumed, cannot be said, cannot be stated. The government decisions will be based on majorities. Cannot be stated. The government cannot.
29 is D. अनुराधा त्रिवेदी आप बोल रहे हैं डी। बेटा कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं डी? 29th का बोल रहे हैं तो सही है। विधि, कर्तव्य, हिमांशी, ऋषिका, प्रशंसा, रूबी, अदिति, मुहारी, प्रियांश, सही है। नंदिनी, नंदिनी रोहरा, Nandini Rohra, Nandini Nayak, they're two different students. Okay, Nandini Nayak, are you there in the session or missing it? आज वाला सेशन I've said like it's not for the students those who are procrastinating. जो मिस कर रहे हैं वो मिस कर रहे हैं. I'm getting comments from Nandini Rohra. Good. चलो. At times, I don't know the names, इसलिए मैं नाम पूछ लेता हूँ. Whose name I have not seen. Okay. Nandini Rohra, you are in which batch? Just let me know. And okay, that child Nandini Nayak is not there. Good. Coming to question number 30. The passage below is an executive order by Barack Obama. ये लिखने का क्वेश्चन लिखने का तरीका बहुत अच्छा है ये. बराक ओबामा का एक ऑर्डर लिख के लाए. अब इस ऑर्डर से आप क्या समझ सकते हैं? इस ऑर्डर से क्वेश्चन नंबर 29 एक्सप्लेन प्लीज, बता तो दिया. रूल ऑफ लॉ का मतलब स्टेट की अथॉरिटी आर्बिट्ररी नहीं हो सकती. आर्बिट्ररी का मतलब मत पूछना. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन मेनी टाइम्स. ओके नंदिनी रोहरा, you're from Plateau batch. I was talking about another Nandini from Anand batch and she's missing it. Okay, good. Question number 30, 30. इसमें बराक ओबामा बोल रहे हैं कि हमें किसी से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, हमें किसी से पर्सनल बेनिफिट नहीं लेना चाहिए लॉबी से, है ना? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम इट. कनक श्रीवास्तव, पढ़ इसको अच्छे से. इसमें लिख रहा है वो प्रेसिडेंट यूएस का कि हम किसी से गिफ्ट नहीं लेंगे. जो लॉबी करते हैं लोग, सरकारी व्यक्ति किसी से गिफ्ट ना ले. सीधी सी बात. क्या होगा इससे? इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी. क्या होगा इससे? बहुत सिंपल सी कहानी कि फेयरनेस आएगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, गवर्नमेंट के एक्शन आर्बिट्ररी नहीं होंगे वगैरह वगैरह. सिंपल. सी कैलकाटा, क्वेश्चन नंबर 30. Kanak Srivastava, I'm not able to understand anything. Now I think you'll be able to understand. Good enough. Passage 7. I've taken a lot of time today. Huh? Come to passage 7. Uh, to tell you more, towards the end, before end of the day, I'll share with you a video about how was the performance overall and what would be the good digits. सनत बेटा सी. अब ऐसे क्वेश्चंस भी गलत करोगे क्या तो पिटाई होनी चाहिए. डायरेक्टली दिया हुआ है. नैन्सी शर्मा, व्हाई नॉट डी? बिकॉज इट्स गिवन. रीड इट वेल. रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है इस पूरे पैसेज में. उसमें दिया है कि लॉबीज लोगों से यूजुअली लोग ले लेते हैं गिफ्ट्स. अब गिफ्ट लेना बंद कर दो, ये यूएस की प्रथा बदल रही है. चलो. Now it is about communication. Swani, you will be informed. चल आयुष, बढ़िया. नंबर लाने चाहिए लेकिन अपने को. लेट्स डू इट. समय ज्यादा नहीं लूंगा. पैसेज नंबर 7 हमेशा याद रखना, क्लैट 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा. पोस्टल रूल अगर नहीं पता है ना तो पिटाई होनी चाहिए. पोस्टल रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ये पता होना चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन में कैसे होती है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में कैसे होती है. और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन अबाउट पोस्टल रूल. और ये वाला पैसेज थोड़ा ट्रिकी है. इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई है जो आपने पोस्टल रूल में पढ़ी है. लिमिटेड वे में लिखा हुआ है. सो आई थिंक we'll had great good time with this passage. I think Powell versus Lee और इसे बहुत सिंपल सा है. Let's see.
क्वेश्चन नंबर 31. Vidhan एक contractor है. He is approached by Vidhi for offer and with an offer of rupees 6 lakhs for a work he receives through post. He finds the term acceptable and sent while postal order. Choose the correct thing when it becomes complete against Vidhi. याद रखना पोस्टल रूल में ये ऑफरर ये एक्सेप्टर. ठीक है. ऑफरर और एक्सेप्टर. ऑफरर कब बाउंड हो जाएगा? जब एक्सेप्टर ने ट्रांजिट में डाल दिया. इतना से ही आपके पैसेज में दिया है. और जबकि आप रियली जब इस रूल को पढ़ते हो तो आपको वहां था एक्सेप्टर तब बाउंड हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज. ये आपके पैसेज की लास्ट पैराग्राफ में लास्ट में दिया हुआ है. ऑफरर इज बाउंड जब ट्रांजिट में आ गया. एक्सेप्टर इज बाउंड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर. ये एक बेसिक बात थी, आपको पता होनी चाहिए. नाउ व्हेन इज द कम्युनिकेशन कंप्लीट अगेंस्ट द विधि? विधि क्या है? ऑफरर. तो क्वेश्चन नंबर 31 बेसिकली केक वॉक है. जब उसने पोस्ट में डाल दिया, खत्म कहानी. बी बॉम्बे इज द ओनली पॉसिबल आंसर. यस यस शुभी अग्रवाल, इतना लंबा लिख दिया बेटा आपने, बिल्कुल सही लिखा है. सी बोल रहे हो कर्तव्य नायक को. 32 पे आ गए लेकिन आप. ठीक है 32 देखते हैं. Suppose in the fact of our question, Vidhan is given work order of rupees 10 lakhs to ensure huge profits. ये irrelevant information है. He quickly gets operating on the work order and forgets to send. अपने acceptance भेजी नहीं है. जब तक acceptance भेजी नहीं है तब तक कुछ हो नहीं सकता. इसीलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता. The offer has not been accepted as there's no reply sent to Vidhi. क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर इज सी कैलकाटा. दीक्षा गुर्जर गलत है बेटा, नहीं हो सकता. मुशयन इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग. अंडरस्टैंड, जस्ट सी टू इट, जस्ट सी टू इट. द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड एज टू द रिप्लाई वाज नो रिप्लाई वाज सेंट. रिप्लाई नहीं भेजा है. चलो सिंपल क्वेश्चन था. 33. Vidhi and Vidhan are finalizing terms of a contract over phone. Vidhan is in a hill station with facing a poor network issue. Vidhi tells Vidhan that she is offering him rupees 20,000 as consideration, where he demands 30,000. After hearing Vidhi's voice for 5 minutes, Vidhan disconnects call. उसको आवाज नहीं आई. 33 without an iota of doubt is C. Rishika Jain, you are wrong. Rest everyone, kudos to you. 34 देखते बेटा, फटाफट आ जाओ. Suppose in the facts of the above question, Vidhan receives the offer from Vidhi via telephone. Telephone क्या हो रहा है? Direct communication. However, responds via post, giving while on telephone Vidhan does not respond. Direct communication चल रहा था, फोन आया, फोन पे तो उसने नहीं बोला. He post his acceptance, post कर रहा है. लेकिन before he could post, विधि ने फाइनलाइज कर दिया, ऑफरर ने किसी और को दे दिया. तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता. अब इट्स डन. 34 का बी इज फैंटास्टिक आंसर. एवरीबॉडी मार्किंग बी. कूडोस टू यू. करेक्ट आंसर इट इज. नो डाउट्स व्हाटसोएवर. लेट्स गो टू 35. Which of the following statements would the author of the passage most likely to disagree with? 35. साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. ये तो अग्री कर देगा, तो नहीं है, हो सकता हमें डिसअग्री चाहिए. फॉर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस कैन बी मेड इन एनी. नहीं, प्रिस्क्राइब्ड होता है. तो इससे डिसअग्री करेगा हमारा ऑथर. तो हमें समझते हैं इसको सही हो सकता है. दे कैन बी एक्सेप्टेंस, ये भी सही है, ये भी नहीं हो सकता. द केस ऑफ इज द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पेडिमेंट. करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता. सेफेस्ट आंसर इज बॉम्बे. कर्तव्य नायक गलती कर दी बेटा इस बार. दीप्ति खंडेलवाल गलती कर दी आपने. इसका आंसर सिर्फ बी हो सकता है. 35 का सी. हंसिका व्यास यू आर रॉन्ग. आयुष जैन यू आर रॉन्ग. दिया भास्कर गलत कर दिया बेटा. आई होप द रीजनिंग इज करेक्ट. ही सेइंग डिसएग्री. कौन सी बात से डिसएग्री करेगा? नाउ लेट्स कम टू द अल्टीमेट पैसेज ऑफ द डे. द लास्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस हियर ऑन आवर स्क्रीन. चलते हैं आगे. The follower of Hindu religion believe that वगैरह वगैरह. ये वाला पैसेज ये था. Oh wait, the passage is about the Karnataka government and hijab case.
चल मयंक, गुड गोइंग बेटा। देन हिजाब के बारे में एक क्रिटिसिज्म था, एक बहुत अच्छा पैसेज हमने पढ़ा था। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड फिलोसफी नाम के एक ब्लॉग से ये अच्छा पैसेज मिला था, तो आई थॉट दैट आई शेयर विद यू ऑन सम पेपर। अब देखते हैं। The follower of Hindu religion believe in playing hymns on loud amplifier. There's a Hindu temple. Vidhan is a CLAT aspirant. उसको दिक्कत हो रही है। आईएमसी ने ये पास किया ऑर्डर दैट देयर शुड बी कंप्लीट बैन। ये पूरा पैसेज ये बोल रहा है कि रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी शुड बी एडहियर्ड। So it was about that hijab case. It is a criticism कि hijab वाले केस में it's about the freedom of religion. And when we talk about freedom of religion, it can be subjected to reasonable restriction, but that should withstand the principle of proportionality and reasonableness. ठीक है? 36 देखते हैं। 36 का क्वेश्चन है, आईएमसी जस्टिफाइड है क्या? आईएमसी ने क्या किया? पास द कंप्लीट ब्लैन। उनने बोला कि पूरा का पूरा बैन लग जाएगा, ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन। तो ये प्रोपोर्शनेट तो नहीं है, और अगर ये प्रोपोर्शनेट नहीं है क्वेश्चन नंबर 36 में, हमारा आंसर हो गया सी कैलकाटा। आई होप रीजनिंग समझ में आती आ रही है। पार्डन मी एंड स्टेबलिस्ट एवरीवन। Follower of a religion A believes in eating cow's beef. However, religion B are strictly against the consumption of cow's beef. Specifically in the month of October, followers of B want a shop to be closed during that function only. ये पूरा पैसेज मैंने बताया फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अब ये प्रोपोर्शनेट लग तो रहे, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। पीपल सेइंग ए आगरा, fantastically right. Most of you are writing A Agra, so I would not want to go further and explain. According to the views of the author of the passage, what should be the duty of school and government? The duty of school and government. उनने बोला कि सर्वधर्म संभव की बात हो, रिलीजियस टॉलरेंस की बात हो, लोग, ये आखिरी के दो जजमेंट्स है ना, लोग अलग अलग रिलीजन के आके साथ में रह सकें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। 38 का आंसर। मृत्युंजय त्रिवेदी, अरे त्रिवेदी बहुत स्लो, तुम 36 पे जा रहे हो अब। यहां उनने बोला कंप्लीट बैन ऑन प्लेइंग इन एनी वे, ये है ना प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये एक्सेसिव है, नॉट प्रोपोर्शनेट। और वह पूरा पैसेज ही प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में। चलो 39, अगर असर्शन है द रिस्ट्रिक्शन imposed by the measure should not be arbitrary or an excessive nature so as to go beyond the requirement of interest of general public, अगर ये असर्शन है, कर्तव्य नायक वही भी 38 में। पैसेज पढ़ो अच्छे से, रीड पैसेज, दो केसेस भी दिए हुए हैं। therefore B। 39 इज सिंपल। 39 के एबीसी तीनों आ गए। द लॉ शुड साइंटिफिकली कैलकुलेट ऑल पॉसिबिलिटीज, ये तो गलत बात हो गई। द लॉ शुड एम टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन स्टेट इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यही उसकी बात है कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट का इंटरेस्ट है। इनके बैलेंस के लिए कैसे करना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ये एक्सट्रीनियस बी के अलावा कोई और मार्क कर रहा है इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। मंजन, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। Last question is number 4040. In the light of the information in the passage, which is, ये 40 question was my favorite, हाँ। अब मैं आपको समझाता हूँ 40, इसका आंसर इज सी, बट मोस्ट ऑफ यू हैव कमिटेड मिस्टेक इन 40। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 40 इंटरेस्टिंग है। इन द केस ऑफ सेरिफ वर्सेस ग्रीस, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, वो यूरोपियन ह्यूमन राइट कोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो ये इनकरेक्ट हो गया। ध्यान से सुनना, तो आंसर देख लिया, मैं तो रीजनिंग समझा रहा हूं।
Next, the said Karnataka government's directive is not placing reliance on, it is placing reliance. It is. उसमें लिखा ही है ना कि आशा रंजन वर्सेस स्टेट को साइट किया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने, तो ये भी गलत हो गया. The case of Sarif versus Greece was placed reliance upon in Sarika Watkins Singh versus Aberdare Girls School case. Yes. In the case of Bilka Kafus and so, the court held that state imposed restriction could not. Question number 40 was the best question of today. Last में मिला, best मिला. तो मुझे फटाफट बता दो, anybody having more than 35 right? किसी के 35 से ज्यादा सही हो तो बताओ. जल्दी बताओ if you have more than 35 questions right. Anybody? नहीं? तो फिर नंबर कम है. To everyone, purpose of VPL is to hone our skills. अपने स्कोर्स शेयर कर सकते हो अगर शेयर करने का मन है तो. VPL जितने तनिष्का गुड बेटा, बढ़िया. To everyone, what I'm trying to say. ऑफसेट से करते हैं आयुष जैन, बता दूंगा मैं. अभी ध्यान से सुनो. आज जो ये वीपीएल हुआ, इसका पर्पस ये है कि हम टाइम डिसिप्लिन को एडहियर करें. मैं फिर से रिपीट करता हूं इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वीपीएल. टाइम डिसिप्लिन, हर सेक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम में करना है. आप अगर लीगल करके 30 मार्क्स लाते हैं लेकिन आप मैथ्स का 10 मिनट और इंग्लिश का 10 मिनट चुरा के लीगल को देते हैं, तो दैट्स द रॉन्ग वे. यू हैव टू डू. आज का आपका कितना सॉर्टेड था. फर्स्ट यू हैव डन, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों जो थे लैंग्वेज इंटेंसिव सेक्शंस, 20 पैसेजेस बैक टू बैक, so that the maximum fatigue you have done it that way. So in my opinion, we'll have more of such VPLs, and I would want everybody there to put in the focus to understand and to slog in a bit harder. दिन कम है, sweat more during practice and bleed least during battle. I wish that together we will make it large in CLAT. और याद रखना, जीतना तो हमें ही है. हाँ या ना? जीतना तो हमें ही है. ऑल द बेस्ट. आगे भी ऐसे ही वीपीएल होते रहेंगे. ऑल द बेस्ट. स्टे लॉजिकल एंड स्टे हेड विद विधिज्ञ, योर बेस्ट पैल इन CLAT preps. फिर से बोलता हूँ, जीतना तो हमें ही है. ऑल द बेस्ट. गेट सेट फॉर समीप सर सेशन.